بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان، اور ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ آپ کو کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ چاہتا ہو میں ناکام ہو جاؤں۔ سب کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ جتنی محنت ہو رہی ہے یہ کامیاب ہونے کی ہو رہی ہے، لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی انسان ہیں، یا کامیاب یا ناکام۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، آئے ہیں، آئیں گے، موجود ہیں، چلے گئے، یا کامیاب یا ناکام۔ تو کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا بندے سے، یہ بندے کی کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے یہ کامیاب ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے یہ ناکام ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ہے، اللہ کا راضی ہو جانا۔ ہاں، 3 بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، دودھ پلا رہی تھی۔ ایک بادشاہ گزرا اور شاہی سواری، لوگ آگے پیچھے، تو ماں کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے دودھ چھوڑا اور اس بادشاہ کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے اور گھسیٹ رہے تھے، جوتے مار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ تو ماں کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنائیو۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے، میں نے اس کے لیے شرافت مانگی، یہ انکار کیا، اور یہ ذلیل عورت اور کہتا ہے مجھے اس جیسا بنا، یہ کیا بات ہے؟ تو بچہ پھر بولا کہ ماں وہ پہلا جو آدمی گزرا تھا نا، دنیا میں بڑا نام ہے، بڑی شہرت، بڑی واہ واہ ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائی۔ یہ دوسری عورت جو گزری تھی نا، یہ تو لوگوں نے اس پر بہتان باندھا ہے، یہ تو نیک عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، یہ تو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیے۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا راضی ہو جانا۔ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ناراض ہو جانا۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے آپ کامیاب ہو، اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ ناکام ہو۔ آپ ایک لکھو نا، ایک لکھو، اس کے بعد لگاؤ 0، کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا 0 100، تیسرا 0 1000، چوتھا 0 10,000، پانچواں 0 1 لاکھ، صفریں بڑھائی جاؤ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، بنائی جاؤ صفریں۔ اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ 0 0 0 0 0 0 0۔ آپ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، 1 پلاٹ 10 پلاٹ، 1 فیکٹری 10 فیکٹری، 1 ڈگری 10 ڈگری، 1 عہدہ، ساری دنیا کے بادشاہ بنو۔ اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ کیا ہو؟ 0 0 0 0 0 0، آپ ٹکے کے بھی نہیں ہو۔ ہاں، اس لیے ہمارے بھائیو سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ۔ اچھا، اب اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ علامت ہے کہ موسم کون سا ہے؟ گرمی کا ہے، اور ہیٹر چل رہے ہوں تو یہ علامت ہے کہ موسم کون سا ہے؟ سردی کا ہے۔ ایک آدمی سائیکل پر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ آدمی غریب ہے۔ ایک آدمی گاڑی پر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ پھر گاڑی کی بھی 10 لاکھ کی بھی ہے، 1 کروڑ کی بھی ہے، 4 کروڑ کی بھی ہے۔ اس کے حساب سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں نا، اس کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں نا کہ بندہ غریب ہے کہ مالدار ہے۔ ایک آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تندرست ہے۔ ایک آدمی سہارے سے اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آدمی کیا ہے؟ کمزور ہے، بیمار ہے۔ اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اللہ اسے اعمال کا شوق دیتے ہیں، اللہ اسے اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اللہ اسے اعمال کا اس کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں، اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اللہ اس سے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ایک آدمی کو نماز
पढ़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को नमाज छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को तरावी पढ़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को तरावी छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को रोजा रखना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को रोजा छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी का साल में भी कुरान खत्म नहीं होता और एक आदमी का हर रोज कुरान खत्म होता है, एक आदमी का मस्जिद में आना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को मस्जिद से निकलना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को ये बात सुनना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी का ज़हन है कि ये बात खत्म ही ना हो। हाँ, अब हम सब अंदाजा लगाएं हमारे अंदर अमाल का शौक कितना है, नमाज का कितना शौक है। अल्लाह के नबी ने माल का शौक पैदा नहीं किया, अमाल का शौक पैदा किया। पहली सब में नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया, तकबीर उला से नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया, मस्जिद में जाने का शौक पैदा किया, जमात से नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया और अजान देने का शौक पैदा किया। फरमाया अगर तुम्हें पता लग जाए अजान देने पर क्या मिलता है तो क्या होगा, कुरानदाजी करनी पड़ेगी। सब में शौक आ जाए मुझे अजान देनी है। हाँ, अगर तुम्हें पता लग जाए पहली सब में नमाज पढ़ने पर क्या मिलता है, कुरानदाजी करनी पड़े कि मुझे पहली सब में नमाज पढ़ना है। शौक पैदा किया है अमल का। सहाबा मस्जिद की तरफ आते थे ना, कदम छोटे छोटे उठाते थे, नेकियां ज्यादा हो जाएं, नेकियों का शौक। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मेरा घर मस्जिद से दूर है, मुझे इजाजत दें मैं घर मस्जिद के करीब बना लूं। और मैं नहीं 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 नहीं, जितना तुम दूर से आओगे हर कदम पे तुम्हें नेकी मिलेगी। अमल का शौक पैदा किया, अमल से जिंदगी बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम में से रोजा किसने रखा। रोजा, रमजान का रोजा तो फर्ज है, ये तो रमजान के अलावा बात हो रही थी, रमजान के अलावा पूछा आपने, आज तुम में से रोजा किसने रखा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, हुजूर मैंने रोजा रखा है। दूसरी बात फरमाई आज तुम में से किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है। हजरत अबू बकर खड़े हो गए, हुजूर मैं एक मिस्कीन को खाना भी खिला के आ रहा हूं। तीसरी बात फरमाई आज तुम में से किसी बीमार की इयादत किसने की है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए, हुजूर एक बीमार की इयादत भी करके आया हूं। चौथी बात फरमाई आज तुम में से किसी जनाजे में शिरकत किसने की है। हज़रत अबू बकर फिर खड़े हो गए, हुजूर एक जनाजे में शिरकत भी करके आया हूं। आपने फरमाया जिस आदमी में ये अमाल जमा हो जाएंगे वो सीधा जन्नत में जाएगा। अमाल का शौक पैदा किया। साहबा का शौक माल का नहीं था, कपड़ों का नहीं था, बर्तनों का नहीं था, जेवर का नहीं था, टाइल पत्थर का नहीं था, चीजों का नहीं था। साहबा का शौक अमल का था, अमल का था, अमल का था। अमल में एक दूसरे से आगे बढ़े हैं अमल में। इसलिए एक अजीब मुकदमा आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। गरीब गरीब साहबा इकट्ठे हुए, गरीब गरीब साहबा इकट्ठे हुए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक मुकदमा लेकर। क्या कि हुजूर ये मालदार भाई हमसे आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। वो कैसे, हम नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ते हैं बराबर बराबर, हम रोजा रखते हैं वो रोजा रखते हैं बराबर बराबर। हाँ, लेकिन इनके पास माल है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये गुलाम आजाद करते हैं, ये सदके करते हैं। हमारे पास माल कोई नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं कर सकते। माल खर्च करने के अमल में ये हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। ये परेशानी थी। आज क्या परेशानी है, मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मेरा मकान छोटा है, मेरे पैसे थोड़े हैं। साहबा को परेशानी क्या थी, अमल में पीछे रह गए। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं जो उस अमल को करेगा उससे आगे कोई निकल ही ना सकेगा, इतना सवाब और अजर कमाएगा उसके बराबर कोई पहुंच नहीं सकेगा, इल्ला ये कि वो भी कर ले। क्या, फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जो ये तस्बीह पढ़ेगा उसको इतना अजर मिलेगा कि इसके बराबर कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब गरीब साहबा बड़े खुश हो गए, वाह वाह ऐसा अमल मिल गया, हमारे बराबर कोई पहुंच नहीं सकता। अब फजर नमाज पढ़ी मस्जिद में और बैठ के तस्बीह शुरू कर दी। अब उस जमाने के जो मालदार थे उन्हें भी शौक किसका था, अमल का, उनकी भी हिर्स अमल की। उन्हें पता लग गया इस मामले का तो वो भी बैठ गए, उन्होंने भी तस्बीह शुरू कर दी। तो गरीब साहबा दोबारा इकट्ठे हुए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया अल्लाह के रसूल वो तो मालदार भाइयों को पता लग गया उस तस्बीह का, वो तस्बीह तो उन्होंने भी शुरू कर दी, वो तो फिर हमसे आगे निकल गए। उस पर आपने फरमाया ये तो फिर अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे। मेरे भाइयों, आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़े हैं। आमाल में, आमाल से दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। तो सब नियत करो भाई अपने अमाल को अच्छा बनाना इंशाअल्लाह। अपनी नमाज का एहतमाम, कुरान का शौक हो,
जिक्र का शौक हो। और हदीस में आता है जो रोजाना 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। दूसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस्तिग़फ़ार किससे किया? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और छोटा सा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वो तुम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते? इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह की रहमतें बरसेंगी तुम्हारे पर। ऐसी अजीब बात है। अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप इनमें मौजूद हैं इन पर अजाब नहीं आएगा, और अगर आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे इन पर अजाब नहीं आएगा। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। तीसरी चीज, अल्लाह से जन्नत मांगें। चौथी चीज, जहन्नम से पनाह मांगे। तो मेरे भाइयों, आमाल का एहतिमाम, आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़े। नमाज है, कुरान है, जिक्र है, दुआ है, तहज्जुद पढ़े। तो सब नियत करो भाई आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह भाई। इसको अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमें आमाल की तौफीक अता फरमा, आमाल की तौफीक अता फरमा। आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, नियत करें आमाल से, आमाल का एहतिमाम करना है। दुआ मांगे, अल्लाह अमाल की तौफीक दे दे। कोशिश करें अमाल में आगे बढ़ने की। तबलीग क्या है? ये बात लोगों को समझाओ, ये बात लोगों को समझाओ। अपने घरों को अमाल से आबाद करो, अपनी ज़िंदगी में अमाल लेकर आओ। अमाल से दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनाएगी। अपना निज़ामुल औकात बनाएं, सब तय करें। मुझे इतना रोज़ाना कुरान पढ़ना है, इतना मुझे जिक्र करना है, इतनी देर मुझे दुआ मांगनी है, ये वक्त मेरा घर का है, ये वक्त मेरा मस्जिद का है, ये वक्त मेरा कुरान का है, ये वक्त मेरा जिक्र का है। तय करें कुछ भाई। ठीक है ना, सब करेंगे ना इंशाअल्लाह भाई।